Hi everyone, good evening. Hi Pratnesh, hi Pratyasha. Good evening Rugved. Good evening Shivang. Good evening Romel. Alright, so I hope आप लोगों ने recording number 6 देखी है and you have attempted these questions which were the target for the next class. Great. And hope आप लोगों ने ये question वैसे ही attempt करे हैं जैसे I would have asked, like practice them like a test. Try to understand कितना याद रहता है कितना नहीं रह पाता है. Good. ठीक है, so आज का discussion यहीं से start करते हैं. Let me just quickly copy this up here. So this becomes the target for today's class. हाँ, recording 7 आज के लिए नहीं था. Recording 7 was something which was there for the next class. हाँ. हाँ, right, recording 7 छोटा था. That was something which would have been because it would have कई बार ऐसे like those lectures which you are seeing, they were streamed to students who are studying from Akola, Jalgaon, Bhusawal, जो भी ऐसे interiors of Maharashtra में students हैं, they along with one of the batch that sits live in Andheri, वो stream होता है. तो sometimes what happens is that the line gets cut off, as in the remote batches become offline. So as a result, there are interruptions sometimes. हाँ, right, Sumit. All right, so I hope now most of the students have joined in. We can begin today's discussion. So you would have seen those recordings and the topics that got covered. So primarily, the topic that got covered as part of recording 6 was uh, the exceptions of ionization energy. And the other topic that would have got in fact in the exceptions also हम लोगों ने if you would have noticed S and P block का तो exception कर ही लिया था. ठीक है, primarily D block के exceptions would have been covered. Then post this you would have studied certain applications of ionization energy. Okay, so in terms of the theory content that was there, it wasn't much, right? The primary focus for today's session would be the doubt discussions. I'm pretty sure that आप लोगों को काफी doubts आए होंगे
from the homework that you would have understood, from the homework that you would have attempted. Now, before going into the booklet discussion, let me just quickly take care of any theoretical doubts or conceptual doubts that you might have. From these two recordings. Okay, one, that are the exceptions in D block. So D block में आप लोगों ने notice किया होगा, across period there isn't much to analyze left to right. The trends are pretty weird, or to be fair, there are no trends. इसमें one of the examples which I would have highlighted, जो आपको याद रखना है, was something that was in case of copper, zinc, silver, cadmium, and gold and mercury. Right? इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा अक्रॉस द पीरियड IE1 का ट्रेंड was something in this manner. ठीक है? Despite, so this is not really an exception to the ionization energy trend. This is something which is as per the trend that left to right ionization energy increase हो रहा है. So it is actually happening here. However, the reason why I am highlighting this as an exception is because when it came to size, which is one of the primary factors on which ionization energy depends, right? The size trend was something which was the opposite way. That is something which, when we discussed, if you remember, from the size discussion of how the atomic size in the D block was when we were going from left to right in the periodic table. So left to right size decreased कर रहा था, but then in the end it increased between the last two elements of the row. So this was something that I highlighted as a part of that. Then इसी में मैंने एक और point जो highlight किया था आपके लिए, it was that when we talk about the second ionization energy between these elements, right, then the trend should be reversed, and it is something that gets reversed because of the fact that these elements will now have electrons being removed from 3D or n-1D, I should say, for the second ionization energy. Whereas for these elements, the electron was to be removed from Ns only. Okay. So this is something that was bound to come as an exception. Then across a period, I think there wasn't then much to talk about. I think एक और notable example जो across a period मैंने आप लोगों को बताया होगा would have been the
आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन बिटवीन पैलेडियम एंड उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट. पैलेडियम के बाजू में क्या आता है? प्लैटिनम. नहीं सॉरी, प्लैटिनम तो उसके नीचे आएगा. पैलेडियम के बाजू में क्या आएगा? व्हाट इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड? सिल्वर. राइट. सो पैलेडियम का आयनाइजेशन एनर्जी is greater than silver because the configuration of palladium is 5s0 4d10, whereas that of silver was 5s1 4d10, right? So यहाँ पर the electron was to be removed from 4d, whereas the electron was to be removed from 5s in case of silver. That is why this becomes another example to remember by. ठीक है. वैसे तो बहुत ही रैंडम से ट्रेंड है, जैसा मैंने आपको बताया डी ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड द ट्रेंड्स आर प्रिटी रैंडम. ठीक है. तो आप हर एक के केस में कुछ ना कुछ कंपैरिजन निकालोगे तो आपको लगेगा कि अरे दिस डज नॉट फिट इन द रेगुलर ट्रेंड्स, तो क्लासिफाइड अंडर एक्सेप्शंस, बट देयर इज नो पर्पस गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. दीज आर सम कॉमन वंस व्हिच यू शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड. ठीक है. नाउ इनमें अब आपके कुछ कुछ डाउट्स हैं तो मैं एक एक करके डील करता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल पूर्णा का डाउट आ रहा है then regarding how the size of copper was greater than zinc, right? So what we said was that when we went in a group from left to right, okay, the size was supposed to decrease, but in case of copper and zinc, okay, the size increased. And as a collective reason for their increase in size, we said that because of the fully filled d subshell, the size has increased because the fully filled d subshell has increased the shielding, as a result of which the outer electrons did not experience the complete nuclear charge, which result in the increase of size. तो मैंने collectively आपको कॉपर और जिंक के बारे में बताया है. ठीक है. Now definitely after discussing this, after talking about copper and zinc collectively, ये एक definite doubt students के दिमाग में आता है that collectively, ठीक है सर, collectively हमें समझ में आया कि हाँ कॉपर एंड जिंक के केस में like size increase हो गया, but then what explains the increase in the size when going from copper to zinc? ठीक है. ये कॉपर है, जिंक है, हमें इतना समझ में आया जैसे when we are going across the period this decrease in size happened, but then it increased, and it is copper and zinc which became greater than nickel. like ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब का तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज था. कॉपर एंड जिंक का उनसे थोड़ा ज्यादा हो गया. ठीक है. तो अब the thing is that whenever you read the standard textbooks, ठीक है, all of them, they never individually talk about the increase in the size that happened from copper to zinc. ठीक है. They together collectively mention that because of this poor shielding, this increase in size happened when we went from copper to zinc. ठीक है. Now if we were to explore, ठीक है, why this happened in case of copper and zinc, then what we can say is that between copper and zinc, ठीक है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नोटिस करोगे, it is 4s1 3d10. ठीक है. जिंक का कॉन्फ़िगरेशन is 4s2 3d10. ठीक है. Now the outer electron in case of both, ठीक है, is the same 4s only. दोनों में 4s इलेक्ट्रॉन है. इसका कॉपर का Z is 29
whereas zinc का Z is 30, the actual nuclear charge. ठीक है. Now when we talk about the effective nuclear charge, ठीक है, Z effective, तो Z effective क्या होगा? It will be 29 minus something in case of copper and 30 minus something, say sigma dash in case of zinc. Now sigma and sigma dash में, like you will notice that जितने भी inner electrons है, ये 3D fully filled है, इन सब का contribution similar ही होना चाहिए. ठीक है. In case of zinc, the only catch that is coming, which is making this sigma dash difference, is कि 4s में भी एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है. Now the Z value, ठीक है, when we look at the Z value, or sorry, Z effective value from zinc to sorry, from copper to zinc, the Z effective would have increased. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करोगे Z का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रहा है, और ये जो सिग्मा का वैल्यू होगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज 3D तक तो दोनों का सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है. द ओनली डिफरेंस दैट केम वाज दैट इन केस ऑफ जिंक देयर वाज दिस वन एडेड इलेक्ट्रॉन इन द 4s. ठीक है. तो उसकी वजह से जो सिग्मा में इंक्रीज आया होगा वो डेफिनेटली 1 से तो कम ही आया होगा. ठीक है. पूरा का पूरा 1 यूनिट का शील्डिंग तो नहीं करेगा ये 4s का इलेक्ट्रॉन. तो जो Z इफेक्टिव है वो जिंक के केस में ज्यादा आया है. ठीक है. एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई वी से दैट कॉपर और जिंक के बीच में इट इज zinc which has the greater ionization energy because of this higher value of Z effective. However, this does not explain the variation in size. This is still something. Oh, sorry, in fact, my bad. Size का trend is increasing manner में है. हाँ. So this still does not explain why zinc का size increased as compared to copper, because effective nuclear charge तो बढ़ रहा था. So the size should have decreased going from copper to zinc. So this contradiction is exactly, I think, what Purna you were trying to understand. हाँ. So मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया था. मैंने साइज में यहाँ पे लेस देन का साइन लिख दिया था. मैंने ये ग्राफ सही से ड्रॉ करा था कि हाँ ये कॉपर है और फिर जिंक का साइज उससे बड़ा है. तो द साइज इज इंक्रीजिंग गोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक. ठीक है. बट द Z effective factor does not come as a handy explanation, because Z effective is something which increases and it does explain the ionization energy part, but size ka reason is not something which is abundantly clear. ठीक है. अब आप जब टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो उसमें there is this rationale of repulsions that is mentioned, but somehow मतलब I am not personally convinced मतलब with that kind of an explanation. आप उसमें भी read करोगे when you I think will read the booklet में भी एक part है जहाँ पर it talks about the repulsions that would have been caused that led to the increase in size, but it doesn't come out as a satisfactory explanation. Okay, but that is the kind of explanation that you will find. Okay, in fact, let me see if I can locate that where it is present in the booklet. Just a second. हाँ कुछ just a minute. आप लोगों को एक let me share the full screen ताकि आप लोगों को booklet भी दिखेगा.
size. So there is this kind of an explanation which you will read, that in the first transition series, atomic size decreases slightly when you are going from zinc to manganese. Then this is because of the effective nuclear charge that is increasing. Then it says that in case of iron, nickel, like cobalt, iron, nickel, in fact, the size remains almost the constant, because both these effects, the effective nuclear charge and the shielding effect, they tend to balance out each other. And then it says that from copper to zinc, there is an increase in this shielding effect, because the effective nuclear charge due to D10 structure in copper and zinc, ठीक है, collectively बात करता है, the D10 structure in copper and zinc, but it does not go into the highlight और डिटेल ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई कॉपर एंड जिंक के बीच में देयर इज दिस इंक्रीज, ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं है. देन आई थिंक आई रेड इट समवेयर एल्स which was in some other textbook which spoke about the reason as something to do with repulsions but not a satisfactory explanation, ठीक है. So this is something that you will have to understand as a collective increase in size because of the fully filled D subshell, ठीक है, not something that you can quantify via Z effective, ठीक है. हाँ, राइट, आई अनम्यूट यू, एक मिनट, बोलो पृथ्वीराज. नहीं, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है. हाँ, मैं करता हूँ हर्ष, तुम्हें, रुको. पृथ्वीराज, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, मे बी योर माइक इज नॉट वर्किंग. हर्ष, तुम बोलो. हेलो सर. हाँ सर, मुझे डाउट था कि लिथियम और बोरॉन में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा. सर, इसमें क्या था कि अगर हम पीरियड वाइज जाएंगे तो फिर लेफ्ट टू राइट में बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था सर, बट अगर हम देखें तो फिर लिथियम इज 2s1 एंड बोरॉन का होता था 2p1 सर, तो फिर 2s में ज्यादा पेनिट्रेशन पावर रहता ना, तो उसका ज्यादा होना चाहिए था ना. बट वही तो मैंने बताया था, दैट ये जो पेनिट्रेशन पावर वाला रीजन था, दिस वाज अ सेकेंडरी रीजन which was only effective for comparison between adjacent elements. ओके सर, ओके सर. तो फिर इनके बीच में बेरिलियम आता है इसलिए अप्लाई नहीं हुआ एंड ये हाँ, सेकेंडरी. ठीक है सर. एडजेसेंट एलिमेंट में ही यूज करना उसको, उसका मतलब उसका जो इफेक्ट है जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन आया ट्रेंड में, वो एडजेसेंट एलिमेंट तक ही दिखता है, उसके आगे उसका इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो यू डोंट सी दैट चेंज ऑफ ट्रेंड. एंड सर, ये जिंक वाला भी कॉन्सेप्ट, जिंक का साइज बड़ा है, वो हमको कन्वेंशन ही मानना पड़ेगा ना. हाँ हाँ हाँ, इसका नहीं है, इतना सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है सर, थैंक यू सर. ठीक है, सो दिस वाज, हाँ, इसके अलावा और किसी को कुछ डाउट पूछना है? कैन वी इग्नोर द 5s शेल इन पैलेडियम? हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो आप इग्नोर ही करोगे. हेलो सर. हाँ सर, मैंने लाइक इन गूगल में बहुत सारी जगह में बताया कि जिंक ये सब तो ठीक है, बट सर एजी और सीडी के बीच में एजी इज स्मॉलर देन सीडी. सॉरी, सीडी स्मॉलर देन एजी. क्या साइज के टर्म्स में बोल रहे हो? हाँ सर. नहीं नहीं, इनफैक्ट ये मैंने आपको लास्ट क्लास में वो ट्रेंड भी दिखाया था ना, आई थिंक आप ही के बैच में मैंने शो किया था ना. सर, एक बार आप एटॉमिक साइज का डेटा दिखा सकते हो इफ पॉसिबल. हाँ हाँ, मैंने वो डाला था ना, आई थिंक लास्ट क्लास में डाला था, आई थिंक 7 सितंबर की क्लास में डाला था, जब हम लोग साइज का डिस्कशन कर रहे थे, या लेक्चर 2 में डाला होगा, रुको.
इस वाला लेक्चर में डाला था। ये था ना साइज का डिस्कशन। कैडमियम का साइज सिल्वर से ज्यादा ही है। मरकरी का साइज भी गोल्ड, सॉरी मरकरी का साइज भी गोल्ड से ज्यादा ही है। सी गूगल पे जाओगे ना तो थोड़ा सा आपको मतलब केयरफुली चीजें स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कांट जस्ट टेक रैंडम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रैंडम साइट। थोड़े सोर्सेज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। नहीं तनीषा, ये पैलेडियम में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था ना, दैट इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि ये बाद में काम आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। क्रोमियम में एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन था, कॉपर में एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन था। ये दो तो मिनिमम याद ही रखने हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये चार। और फिर लैंथेनम एंड एक्टिनियम, एक लैंथेनम और एक एक्टिनियम है, इनके बारे में मैंने बोला था कि आप इनके बारे में भी ध्यान रखना, इनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड। ठीक है। हाँ, देन आस्था क्या डाउट पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ, राइट, यू आर राइट। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फर्स्ट। ठीक है। ऑलराइट, नाउ इन डी ब्लॉक अक्रॉस पीरियड एक्सेप्शंस के बारे में बात करनी थी। देन डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप भी आप लोगों ने देखा होगा एक्सेप्शंस का ट्रेंड किस तरीके से था। तो इसमें मेजरली, ठीक है, एट अ वेरी जनरल लेवल, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन कैसी रहेगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी, दैट 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाएंगे और 4D से 5D सीरीज में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। व्हाई? बिकॉज as we go down the group, size increases. However, the actual trend, ठीक है, of ionization energy, ठीक है, and this is something general, बीच में there are anomalies, ठीक है, but the general trend that came out was that when we went from 3D to 4D, ionization energy, yes, decreased, but when we went from 4D to 5D, the ionization energy increased, right? And this was something which was attributed to lanthanide contraction again. Okay, lanthanide contraction, which led to a rise in the effective nuclear charge and consequently the ionization energy for the fifth row elements. ठीक है। Now this is something, ये जैसे मैंने आपको बताया जनरल ऑब्जर्वेशन है, because if you look at the hard data, like for example, if you go ahead and you look the actual data of ionization energy, तो उसमें थोड़े बहुत changes आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा, इसी में मैंने इनफैक्ट ये भी हाईलाइट करा था, ठीक है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्कैंडियम, ytterbium and lanthanum, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस देयर आर नो 4f इलेक्ट्रॉन्स इन lanthanum, ठीक है। इसके आगे वाले एलिमेंट्स में, अच्छा बुकलेट दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओहो, हाँ अभी दिखेगा, आई थिंक वो माय बैड। अभी आप लोगों को दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? हाँ, सो what I had written was that when we are going down the group, ठीक है, when we are going down the group in D block,
the general expectation of ionization energy is that you go down the group, ionization energy increases, decreases. But the actual trend that came out was that 3D से 4D ionization energy कम हुआ, but 4D से 5D ionization energy बढ़ गया because of lanthanide contraction. ठीक है, and मैंने ये highlight करा that this is something in general because if you notice the data, right, बीच में आपको थोड़ा बहुत changes देख सकते हैं. ठीक है, however broadly speaking as you go down, ठीक है, ionization energy कम होगा. ठीक है, if I zoom in over here, ठीक है, if you go down, ठीक है, स्कैंडियम, यट्रिबियम एंड लैंथेनम में तो वैसा नहीं है, you are going down तो ionization energy decreases. However in some cases there might be an anomaly also. ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और एडिशनली याद रखने के लिए बोलूंगा. ठीक है, समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इज, यहाँ पर आप ये 3 एग्जाम्पल जरूर नोटिस करना, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी का. ठीक है, इनका आयनाइजेशन एनर्जी निकल, कॉपर, जिंक से भी ज्यादा हो जाता है. ठीक है, so this is something which you should keep in memory, that lanthanide contraction की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है एंड रिलेटिवली इतना बढ़ जाता है कि इवन 3D के एलिमेंट से भी ज्यादा हो जाता है. ठीक है, हाँ, अब इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? दिस वाज डाउन द ग्रुप, इसमें बोलो. हाँ आस्था. सर मेरा प्रीवियस वाला ही डाउट है सर. सो द इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले निकलता है सर, विल दैट बी द वन जो सबसे लास्ट में फिल अप हुआ था या जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा है. तो अच्छा, सॉरी, बोलो. यस सर, ओके, आई गॉट इट. बिकॉज़ filling order is different because so I got confused. जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से आप पहले रिमूव करोगे. Okay, so your principal number. पृथ्वीराज बोलो. अभी तुम्हारा माइक काम कर रहा? नहीं, you are not audible. All right. हाँ, बोलो सुमित. हेलो सर. हाँ, सर टेबल में एक बार राइट जाओ सर थोड़ा. इसमें हाँ बोलो. सर इसमें 80 ग्रे क्यों है सर? 80 का डेटा नहीं कलेक्ट किया होगा इसमें. Maybe some reason. Don't know. ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, मतलब आपको 80 का आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाना चाहिए था. होगा कुछ ना कुछ रीजन. We'll have to look into the source of it. ठीक है, वैसे भी जनरली ये लेड एंड बिस्मथ के आगे के एलिमेंट्स जो रहते हैं, इनका रेडियो एक्टिव नेचर शुरू हो जाता है, मे बी इस वजह से, बट नो पर्टिकुलर रीजन. ऑल राइट, सो एज अ क्विक, हाँ मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ. इन द exceptions to D block across a period जब हम जा रहे हैं, तो there are a lot of exceptions, there are actually hardly no trends. तो उसमें जो remember करने के लायक examples हैं ionization energy के, those are these selected examples जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हैं. एक IE1 का, ठीक है, between copper, zinc, silver, cadmium and gold, mercury, and IE2 का. Then there is one more noticeable example, that is palladium and silver के बीच में.
पैलेडियम का ज़्यादा होगा, सिल्वर का कम होगा बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन. देन डाउन द ग्रुप there is this very big exception to ionization energy का trend. The actual expectation down the group is ionization energy should decrease, but in case of going from 4D to 5D, there is a big increase in ionization energy because of the poor shielding of 4f electrons that we call as lanthanide contraction. Now, because of that, 5D के इलेक्ट्रॉन्स का और 5D के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, एंड इनफैक्ट समटाइम्स इतना बढ़ जाता है कि वो 3D से भी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्कैंडियम, यूट्रिबियम एंड लैंथेनम बिकॉज लैंथेनम में देयर आर नो 4f इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. देन आफ्टर दिस you would have discussed the applications of ionization energy, जिसमें primarily जो एक application है which is the count of valence electrons, ये आपने काफ़ी सारे examples के थ्रू, डेटा के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया होगा. ठीक है. Then apart from this, the other applications is something which highlights the variable oxidation state of d block elements. ठीक है. जिसमें there is a emphasis on understanding the gap between successive ionization energies. ठीक है. how these ionization energies, and इसमें अगर बोला जाता है that if the gap between these, this is based on empirical data only. ठीक है. if the gap is greater than 16 eV and if the gap is less than 11 eV, I think 16 and 11 ये data points या 16 and 9 है. I think 16 and 11 ही था. Then one of the oxidation states would be favored, but if the gap is between 11 and 16 eV, then it is likely that the element can show either of the oxidation state or either of the valency. Okay. Then I think there was this another application which was highlighting the metallic nature, metallic character of elements, which talked about greater the or lesser the ionization energy, the more metallic an element will be, the more tendency of that element will be to lose the electrons. Now let's come to the booklet के doubts, because I think that is the one जिसमें आपके अभी major queries handle हो जाएंगे. ठीक है. इसी में आप लोगों को जो और doubts आते रहेंगे, even in these applications जो आपके doubts होंगे वो इन questions में ही cover होने वाले हैं. ठीक है. If you would have attempted these questions तो आपको इनमें doubts आए होंगे, तो मैं इसी में समझाते हुए इनको cover करने की कोशिश करूँगा. ठीक है. So let's start the discussion first with the, मैंने क्या क्या दिया है, FBO. FBO में 26 से 37 के बीच में. Right. तो इसमें आप लोग मुझे बताओ पहले क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं in the FBO section itself. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है, इसको वैलेंसी भी बोल दो आप अभी के लिए. इट इज एज सिंपल एज वैलेंसी. ठीक है. जैसे आयरन +2 +3 दोनों शो करता है. ऑलराइट. 27, 28 और कौन सा बताया आपने, 37. ऑलराइट. बाकी लोग भी देख लो. अरे क्या क्या डाउट है एफबीओ के सेक्शन में पहले. सो 27 में
यहाँ पर if you will notice, you have been given the IE1 and IE2 data. ठीक है. Now if you remember, ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IE1 प्लस IE2. ठीक है. सो Mg से Mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा, दिस इज IE1. ठीक है. देन Mg प्लस से Mg2 प्लस प्लस एक और इलेक्ट्रॉन निकला, दिस इज IE2. If I add these two, you can see that Mg plus cancels out. I have Mg से Mg2 plus and 2 electrons are going out. So this is basically IE1 plus IE2. ठीक है. And as a result, when you add these two, you will get the answer of the ionization energy that is required. ठीक है. Then 28th is a question which is an application of ionization energy data only. Right? इसमें मैंने आपको यही बताया था that look at the relative gap of ionization energy. यहाँ से यहाँ जंप किया, फिर यहाँ जंप किया, ionization energy इंक्रीज करती जाएगी, बट यहाँ से यहाँ there is a massive jump that took place. ठीक है. तो यहाँ पर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, देन फोर्थ और फिफ्थ. सो दिस इज IE4 एंड IE5 के बीच में बहुत बड़ा गैप आया. तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट after removing 4 electrons, when the fifth electron was to be removed, ठीक है, this was removed from n-1 shell, the penultimate shell or the second last shell. तो इसका मतलब क्या हो गया, that n shell में जो valence shell था, ठीक है, that had 4 electrons. तो अब इनमें आप ऑप्शन देखो, which option matches the one which had 4 valence electrons. सोडियम में 1 रहेगा, सिलिकॉन में 4, फ्लोरीन में 7, कैल्शियम में 2. So it will be silicon which will have the, or silicon which will be the answer. ठीक है. Then इसके बाद में 31 and 34 भी पूछा है. Alright, 31 and 34 भी ऐड कर लेते हैं अपनी टैली में. 31 में क्या रहेगा, the incorrect statements regarding the ionization energy. Ionization potential or ionization energy is one of the same things. Ionization potential was to be the older term. In fact, आपने देखा होगा जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में कल शेयर किया था, कल नहीं मतलब लास्ट क्लास में, that talked about the experimental way of measuring ionization energy. तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि it was ionization potential, ठीक है, in volts, which is equal to the ionization energy in the units of electron volts. ठीक है. So that is why in older literature you find ionization potential used quite a few times instead of ionization energy. ठीक है. देखा था किसी ने वो वीडियो जिसमें एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट था आयनाइजेशन एनर्जी का? आप ही के बैच में शेयर किया था ना मैंने वो. हाँ, इफ आई रिमेम्बर राइट. सो इसमें कैसा है, इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. मैं वाज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट amongst the following, that ionization energy का ट्रेंड कैसा रहेगा. So and the elements that are being compared are aluminum and magnesium, right? So if you look at the configuration of magnesium and aluminum, right, this is 3s2, this is 3s2, 3p1, right? So IE1 के टाइम ionization energy
मैग्नीशियम का ज्यादा था. व्हाई? बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन ड्यू टू पेनेट्रेशन पावर. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. देन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 रहेगा, यहाँ पर 3s2 रहेगा, एंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी एज पर द नॉर्मल ऑर्डर बिकॉज देयर इज नो रूल ऑफ एनी एक्सेप्शन. देन अगर मैं I3 के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन 2p से निकलेगा. ठीक है, वेयर एज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3s से निकलेगा. तो यहाँ पर दिस आयनाइजेशन एनर्जी विल बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर बिकॉज a complete shell would have been lost and inner shell से electron निकल रहा होगा. So keeping these in mind, you can choose what the correct answer would be. ठीक है. Then 34th question. 34th आपने पूछा था सोडियम. हाँ, तो सोडियम के बारे में this is something which comes from the application only. जो यहाँ पर हम लोगों ने बात करा था that gap between successive ionization energy, if you will notice that I1 and I2 के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा. ठीक है, गैप between I1 and I2 is significantly large. That is why ये second ionization नहीं होगा. ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है या हायर वैलेंसी है वो सोडियम नहीं शो करना चाहेगा. तो इसका रीजन रहेगा आपका हाई सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. सोडियम विल वांट टू लूज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन and remain in that +1 state only. ठीक है. Then इसके बाद 37th question भी आपने पूछा है. तो 37th question is on the same lines. You can see that there is a jump that happened from 3 to 4, right? So the number of valence electrons are 3. ठीक है. All right. Then FBS में से बता दो. FBS में मैंने आपको questions दिए थे, I think, if I remember. FBS में हाँ नहीं, FBS में नहीं दिए, माय बैड. गेट इक्विप टू मेंस में दिए थे. ठीक है, तो फिर गेट इक्विप टू मेंस में किस किस क्वेश्चन में क्या क्या डाउट है बताओ. So 9th question, 43rd question, then अच्छा 2nd and 4th, all right, then 16th. ठीक है, 31st, 4th तो हो गया, 12 and 20. ऑल राइट, ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते. पहले इतना देख लेते हैं एक बार. So if you come to the get equipped section, all right, second question में element X and Y have valence shell configuration in the following manner: NS2 NP5 and NS2 NP3. तो अब आप देखोगे तो इसमें इसका वैलेंसी कितना रहेगा X का. ठीक है, it is going to be part of the halogens, so it would want to act as a non-metal and gain one electron, right? In this situation, X will want to gain one electron and show a valency of 1. And Y, this is going to be like a metal and it will want to show a valency of 3. Okay, it will want to lose these 3 electrons. Okay, this is something which is of the halogen family. Okay, it can be actually metal, non-metal, दोनों हो सकते हैं. But this is boron family. ठीक है.
सो इसमें अब हम कंपाउंड जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वैलेंसीज एक्सचेंज करते हैं ना, x3y1, you just cross multiply the valencies, तो आपका डी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, देन fourth question, M3 plus has this configuration, M3 plus has this configuration मतलब कंपाउंड से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन है। सो if I was supposed to add 3 electrons to this, तो वो कहाँ पर आएंगे, 3D फुल है, 4s फुल है, तो इसके बाद में क्या बचता है, 3D के बाद में क्या आता है, as in 4s के बाद में क्या आता है, 4p, तो the element would be from the p block only। इसमें क्या हो गया, मतलब you just fill 3 electrons ना, बिकॉज आपको m एलिमेंट के बारे में पूछा है, ये उसके आयन का कॉन्फ़िगरेशन है। आई थिंक व्हाट यू वुड हैव मिसरेड इज दैट ये एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिए, एलिमेंट ए के 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी जनरल टेंडेंसी विल बी टू लूज दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज मेटल, तो इसका वैलेंसी 3 रहेगा। एलिमेंट बी के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सो इसका टेंडेंसी विल नॉट बी टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स बट विल बी टू एक्चुअली गेन 2 more electrons to achieve that octet kind of configuration, right? So A का वैलेंसी 3 है एंड B का वैलेंसी 2 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A2 B3, ये D ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, ये तो हम लोगों ने देखा था ना, इसमें अनायन का साइज एटम से बड़ा होगा, एटम का साइज कैटायन से बड़ा होगा, तो ये ए ऑप्शन भी करेक्ट है। देन निकल कॉपर जिंक का अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, साइज का ट्रेंड ऐसा होता है, एंड आयरन कोबाल्ट निकल के बारे में बताया मैंने आपको, इनका सिमिलर साइज होता है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट? सो ए बी सी ऑल 3 आर करेक्ट, राइट, व्हिच मेक्स डी ऑप्शन लाइक नन इज इनकरेक्ट एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन 16th क्वेश्चन में higher values of ionization energy of 5D transition elements is consistent with, right? So ये हमने थोड़ी देर पहले बात करा था D ब्लॉक में एक्सेप्शन का, that 5D के एलिमेंट्स का higher ionization energy क्यों था, because of lanthanide contraction, right? And lanthanide contraction is that summary term that we use. However, what is the underlying reason behind lanthanide contraction? It is the poor shielding of 4f electrons. So poor shielding of 4f electrons, because of poor shielding, यहाँ पर what all reasons can be accounted for? Relatively smaller effective nuclear charge, ये तो गड़बड़ हो गया, अगर shielding poor है तो effective nuclear charge तो ज़्यादा होगा ना, and that is what is going to result in shrinking of size or greater ionization energy. ठीक है, so this is not the reason. Then relatively smaller size of the atoms, yeah, this is something which can be considered as a reason, because just I spoke about कि poor shielding की वजह से effective nuclear charge बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से atom का size shrink हो जाएगा, which results in this higher ionization energy. Relatively smaller penetration will not be a suitable reason. ठीक है, relatively smaller penetration will not be a suitable reason because इसमें जो 5D के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6s है ना, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 6s है, तो s ऑर्बिटल्स का तो हम लोग कहते ही हैं दैट, एंड इसमें भी मतलब लाइक इफ यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, देन साइज इंक्रीज ही कर रहा है।
ठीक है, but penetration power will not be the option to compare for. In fact, it will be something which will be relevant when we are comparing elements which are across a period. ठीक है, डाउन द ग्रुप में इसका इतना रोल नहीं रहेगा. ठीक है. So this actually brings me to an important point, that when you are solving periodic properties के questions ना, ठीक है, make it a habit that you read all the options carefully. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन बी पढ़ा और आपको ऑप्शन बी आंसर समझ में आ गया that it is the correct answer, तो मतलब you will not bother about reading the other options. The reason why I am telling you this is because when you are going to solve questions which are one or more than one correct, ठीक है, अभी तक तो कैसा है, अभी तक आपके जो टेस्ट वगैरह भी हुए हैं एंड मेजर प्रैक्टिस जो आपने करी है वो प्राइमरीली सिंगल चॉइस करेक्ट वाले क्वेश्चंस ही करी है. ठीक है, तो उसमें थोड़ा आसान हो जाता है एलिमिनेट करना ऑप्शंस को एंड चूजिंग द वन विच इज करेक्ट. मतलब उसमें से थोड़ा भी गेस वर्क करना रहता है ना, तो मतलब इट हेल्प्स, काम चल जाता है. बट जब आप वन और मोर देन वन चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, मतलब आप नोटिस करोगे बाद में भी दे विल बी अ वेरी बिग हेडेक फॉर स्टूडेंट्स एंड इट कंटिन्यूज टू रिमेन सो इवन इफ यू रीच क्लास 12th, दैट मोर देन वन चॉइस में you will always struggle because उसमें हर एक ऑप्शन को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना होता है एंड गेस वर्क नहीं चल सकता कि ये सही है या पार्शियली लग रहा है. You have to be very sure before marking that option when it comes to one or more than one choice questions. So make that as a habit starting say when you are practicing questions, especially जैसे नॉन न्यूमेरिकल नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, आप नोटिस करोगे आगे जाके भी जो वन और मोर देन वन चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे they will be lesser on the numerical side and more on the conceptual side, more on the theoretical side I would say. क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो कैसा रहता है, प्राइमरीली यू सॉल्व फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो सिंगल चॉइस में या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बैठ जाता है. However, just give me a second. However, when it comes to one or more than one choice questions, they are primarily made more conceptual in nature. ठीक है, तो उसमें हर एक ऑप्शन को क्रिटिकली एनालाइज करना काफी जरूरी होता है. देन हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, हाँ सुमित, देयर विल बी वेरी लेस सिचुएशन, मतलब समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि देयर आर टू ऑप्शंस दैट वुड सीम करेक्ट, however the question is under the category of single choice correct, तो उसमें जो ज्यादा अप्रोप्रिएट वाला है वो आप चूज करोगे. ठीक है, आगे आएगा. इनफैक्ट देयर विल बी वन क्वेश्चन, ये गेट इक्विप्ड वाले सेक्शन में ही आता है. आई विल टॉक अबाउट इट जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेंगे ना, तब आएगा. हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, वो जब अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तब आएगा. मतलब तो इसमें क्या है, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है. यू माइट फाइंड वन और टू ऑप्शंस विच आर an explanation, but the question is asking for the best explanation. So the one which will be the dominating factor, which will be the crucial factor, वो हमको चूज करके आंसर करना होगा. ठीक है, आप करोगे जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा. अच्छा, देन क्या कह रहे हो तुम वैष्णव, 16th नहीं, अच्छा 19th क्वेश्चन ऑल्सो. 19th कौन सा है, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिस्कशन यहाँ पे क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें क्या होगा कि सबके एस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे पहले दो आयनाइजेशन में. ठीक है, सबके एस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, 4s इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसके बाद में यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे. ठीक है, आफ्टर रिमूविंग, लेट मी जस्ट क्विकली राइट देम.
So after removing 2 electrons, इनका configuration कैसा रहेगा? This will be 3D 4s1 3d5 तो 3d4 ठीक है. This will be 3d3, this will be 3d5 and this will be 3d6. So इसमें what they are then emphasizing is that half filled configuration ठीक है can play a role. However, पता है अगर if you honestly ask me, I would not have been able to answer this question because across the period, ठीक है, across the period, ionization energy in D block is a headache. There is no trend as such. ठीक है, but यहाँ पर the question is specifically talking about the third ionization enthalpy. तो मैं एक बार के लिए configuration जरूर ड्रॉ करके देखना चाहूँगा. ठीक है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो आई बी लाइक कि मतलब व्हाट रबिश, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब मैंने तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ही नहीं स्टडी करा अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड डी ब्लॉक में सर ने बोला था कि बहुत ही वियर्ड ट्रेंड्स हैं, ध्यान मत रखो. तो आई वाज लाइक कि नहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है. तो फिर उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी छोड़ो, आपने तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछ लिया एंड दैट टू अक्रॉस द डी ब्लॉक. ठीक है, एंड डेफिनेटली अभी भी मुझे श्योरिटी नहीं है आंसर की. ठीक है, until unless I see the data I will not be very confident, but just by looking at the configuration I can take a guesswork saying that हो सकता है because of the half filled configuration in manganese there would be a jump in its ionization energy as compared to the other elements. ठीक है, otherwise strictly speaking I myself do not have that confidence. ठीक है, मतलब मैं एक बार के लिए आप लोगों के सामने तसल्ली के लिए डेटा देख लेता हूँ. आयनाइजेशन एनर्जी डेटा फ्रॉम विकी. ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करा जा रहा है एंड कौन से एलिमेंट्स लिए हैं? क्रोमियम, वेनेडियम, मैंगनीज एंड आयरन. सो वेनेडियम का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ये 46 eV है, क्रोमियम का 49 है. ठीक है, मैंगनीज का 51 है और आयरन पूछा है विच इज 54.8. पोपट हो गया ना. आयरन का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी केम आउट टू बी ग्रेटर, बट बुकलेट में तो पीछे आंसर सी ऑप्शन ही दिया हुआ है. ठीक है, बिकॉज इट वुड हैव ट्राइड टू आंसर इट बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, मतलब सी विकी इज जनरली नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब दैट इज अ कॉमन प्लेस, बट स्पेशली ये जो साइंस रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं ना, दे हैव देयर साइटेशंस. तो इनफैक्ट ये जो आयनाइजेशन एनर्जी का डेटाबेस लिया होगा, ठीक है, ये जो CRC एंड WEL है, दीज आर रेप्यूटेड सोर्सेज. ठीक है, जहाँ से ये जैसे CRC हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, तो दीज आर ऑथेंटिक बुक्स जहाँ से ये उठाया जाता है डेटा. ठीक है, जैसे पेरीज हैंडबुक भी रखा है मेरे पास. आई डोंट नो पेरीज हैंडबुक इस वाले लैपटॉप में है क्या? नहीं, इसमें नहीं है. सो दीज आर सम रेप्यूटेड बुक्स जहाँ से डेटा पिक किया जाता है. ठीक है, सुमित तुमने जो देखा होगा ना वो मेटालिक रेडियस नहीं होगा. यू वुड हैव मे बी थॉट ऑफ और सीन द कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था. इट लुक्ड लाइक कि हाँ, बिकॉज ऑफ द 3D5 कॉन्फ़िगरेशन दिस कुड हैव बीन द आंसर. बट ऑनेस्टली मैंने भी इसके पहले कभी डेटा इतना चेक नहीं किया था, बिकॉज मैं भी ऐसे ऑफलाइन क्लास में थोड़ा ना लैपटॉप या मोबाइल खोल के डेटा एक्सप्लोर करने लगता हूँ. ये तो अभी हम ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आई वाज लाइक लेट मी एक बार लुक एट द डेटा. So we actually found out that it is iron which has a greater ionization energy, and I will validate it with one or two more sources. But I would
be very skeptic to answer such kind of questions. Okay, these are very risky questions, some random question being asked. ठीक है. Now इसके बाद में आपने कौन सा 20th क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following paramagnetism, तो इसमें तो आप unpaired electrons काउंट करो ना. This is pretty straightforward. You have these elements in front of you, तो आप इन elements के configuration लिखो और unpaired electrons काउंट करो. That's it, right? So 9 got done. 2, 3, 12, 20, 16. क्या बचा अभी? 31 and 43. All right. So 31. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था मैंने. उसमें भी डाउट आ गया. थोड़ा सा ही तो मैथ्स लगेगा यहाँ पर. 110 मिलीग्राम है, मतलब 110 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स है. डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वेट, ये मोल्स हो गए. ठीक है. एंड दिस इज 720 किलो जूल पर मोल. बस इतना एनर्जी रहेगा आपका. दिस वाज किलो जूल पर मोल, सो आई मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स. So I'll get the ionization energy or the energy required for this process. तो आप इसको मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो. थोड़े से पास है ऑप्शन, तो थोड़ा केयरफुल रहना बिफोर यू अप्रोक्सीमेट एनीथिंग. ठीक है, काफी पास है ऑप्शंस. थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन करना. ऑल राइट, देन माय बैड, कहाँ गए? 43rd क्वेश्चन. हाँ, चार्ज टू साइज रेशियो. तो इसमें आपको सिलेक्टिव पीसेस उठाने पड़ेंगे. ठीक है, यू विल हैव टू गो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन आल्सो. ठीक है. सो इसमें आप क्या क्या कंपेयर कर सकते हो, तो आप नोटिस करना. मैं कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ पहले पिक करता हूँ. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक. ये आपको वैसे तो पता होगी, बट अगर नहीं पता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लर्न दिस ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक. तो आप इसमें बिट्स एंड पीसेस में पिक करो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बीच में. चार्ज तो दोनों का सेम है. साइज मैग्नीशियम का छोटा रहेगा, कैल्शियम का बड़ा रहेगा, राइट? सो द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन साइज, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी ग्रेटर फॉर मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम का कैल्शियम से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. बस यही ऑप्शन रिजेक्ट हुआ. बाकी सब में तो मैग्नीशियम कैल्शियम ज्यादा ही है, तो ठीक है, ये इतना हेल्पफुल नहीं आया, काम नहीं आया. अच्छा सॉरी, यहाँ बेरिलियम 2+ भी है, तो मैं बेरिलियम 2+ को भी ले ही लेता हूँ ना अकाउंट में. बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+. ठीक है, इनमें चार्ज तीनों में सेम है. साइज बढ़ता जा रहा है तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो कम रहेगा. तो बेरिलियम मोर देन मैग्नीशियम मोर देन कैल्शियम, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. अच्छा, तो ए और डी के बीच में अब चॉइस है. अब ए और डी के बीच में द ओनली थिंग इज कि K+ को कहाँ पे रखूँ मैं. तो अब K+ को मैं बेस्ट किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ? द आंसर इज कैल्शियम 2+ के साथ में, बिकॉज दे आर एटलीस्ट ऑफ द सेम पीरियड. ठीक है, तो इसमें आप नोटिस करोगे चार्ज, ठीक है, यहाँ पर इट डबल्स. ठीक है, गोइंग फ्रॉम पोटेशियम टू कैल्शियम. साइज, ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. ठीक है, तो मैं इनका साइज कंपेयर कर सकता हूँ. एंड कैल्शियम 2+ का साइज कम रहेगा एज कंपेयर टू K+. हाउएवर, लाइक it won't become half. ठीक है, it will be lesser. ठीक है, but won't be half.
ठीक है, तो इससे मैं एक एस्टिमेट तो कर ही सकता हूँ that if I now talk about the charge upon size ratio, चार्ज डबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट ये तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें दोनों फैक्टर्स ही हेल्पफुल है, आई डोंट इवन नीड टू बॉदर अबाउट इट। इसमें तो चार्ज भी बढ़ रहा है और साइज भी छोटा हो रहा है, तो ये दोनों फैक्टर्स ही हेल्प कर रहे हैं मुझे कि कैल्शियम 2+ का Q अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज रेशियो ज्यादा होगा, तो K+ इन सबसे कम होगा, कैल्शियम से कम होगा, तो बाकी सबसे भी कम ही होगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। वो मुझे ऐसा लगा कि ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू टेक दैट रीजन कि डबल हो रहा है बट इतना नहीं होगा, बट हाँ इसमें तो एक्चुअली दोनों चार्ज एंड साइज के फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। देन और कौन सा डाउट था, ठीक है। सो आई थिंक इसके अलावा और कोई डाउट है गेट इक्विप वाले सेक्शन में? ऑल राइट, नाउ अभी अपने पास 10-15 मिनट्स बचे हैं, तो क्विकली लेट मी टॉक अबाउट वन कॉन्सेप्ट which you are going to study next, ठीक है, as a target for the next lecture। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर दिया है, ठीक है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, so you should be able to find some time to work on this video, ठीक है। एंड क्योंकि आपका टेस्ट आ रहा है अपकमिंग वीक पे, तो मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में ट्राई करवाऊंगा from this particular topic that will be there in the recording, ठीक है। So no extra homework from the booklet, however अभी भागना मत, ठीक है। There is this part जो कि आप next recording में देखोगे, ठीक है, which talks about this next property called as electron gain enthalpy, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एक जस्ट क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, एंड इसके बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा जो ध्यान से नोटिस करना, which is a point of discomfort to lot of students, that electron gain enthalpy, ये जो प्रॉपर्टी डिस्कस करी जाएगी, ठीक है, इसको कई बार इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसका टेक्निकल डेफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom, ठीक है, when an electron is added to an isolated gaseous atom, this is what the technical definition of this property would be, electron gain enthalpy or electron affinity, ठीक है। So it will be a measure of the tendency of the element to gain electron, ठीक है। Now the thing is that ये experimentally possible नहीं है कर पाना, मतलब try to think of it, this is not possible to experimentally do this kind of an experiment. So these values of electron gain enthalpy, ठीक है, that is the energy released or absorbed,
ठीक है, और we can simply say energy exchanged when an electron is added to an isolated gaseous atom is not something which can be experimentally measured. ठीक है, you can't design an experiment जिसमें you have an element and कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और वो इसमें आके अटैच हो जाएगा. ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन ही नहीं होता. मतलब इफ यू थ्रो एन इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, इनफैक्ट इससे क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे. if you would have seen the video that I had shared in the last class, you would have seen if I throw an electron beam over an atom, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, it knocks off other electron from the atom and takes it out. तो ये आयोनाइज कर देता है. बट ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है, दिस इज नॉट समथिंग which is experimentally done. This is not something which is experimentally designed. However, when you will see the booklet, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जब आने वाली रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें आपको इसका डेटा मिलेगा. ठीक है, सो यू विल हैव ऐसे tabulated data of electron gain enthalpy, ठीक है, of different elements. ठीक है, negative sign would mean that it is the energy released. ठीक है, it is the energy released when the electron would have been added. So the way in which this electron gain enthalpy is determined is not actually an experimental methodology. It is a thermodynamic calculation, ठीक है, which is done as a part of a larger process. ठीक है, क्या रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, बट not in this particular chapter. It will be something which will be discussed in chemical bonding chapter. ठीक है, so you might find, ठीक है, you might find in I should say in certain textbooks you might find जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाया जाता है तो उसके साथ में लिखा जाएगा, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटली वी कांट डिटरमाइन दिस एंड इट इज डिटरमाइंड यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज बॉर्न-हेबर साइकिल. ठीक है, तो ये बॉर्न-हेबर साइकिल अभी डेलिबरेटली हम लोगों ने, ठीक है, इनफैक्ट एनसीईआरटी ने भी, ठीक है, एनसीईआरटी या फिर आप इसका बुकलेट देखोगे, ठीक है, तो इसमें आपको ये इस चैप्टर में नहीं मेंशन करके दिया है. बट अगर आप फॉर एग्जांपल जेडी ली पढ़ लोगे, ठीक है, जेडी ली इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज रेकमेंडेड टू एवरीवन. ठीक है, अगर आप जेडी ली पढ़ोगे तो उसमें इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में बॉर्न-हेबर साइकिल डिस्कस किया हुआ है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ दैट बॉर्न-हेबर साइकिल, ये होता क्या है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज. ठीक है, तो वो अभी के लिए डोंट गो इन और वेंचर इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, बाकी डिटेल में आप लोग देखोगे इन द रिकॉर्डिंग इटसेल्फ दैट व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एंड हाउ इट इज डिफाइंड एंड what are the trends, what are the factors. ठीक है, so that is something which is there covered as a part of the next recording. ठीक है, होमवर्क मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं. ठीक है, मे बी 1 or 2 questions which we can still do. I don't really like to leave the class early, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं आप लोगों को अभी नहीं छोड़ूंगा. I will do 1 or 2 good questions from the booklet. Wait, हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड
ऑलराइट, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करवाते हैं. You can in this question replace the word electron affinity with ionization energy. What will be the order of ionization energy of these configurations? ठीक है. एंड ऑफ कोर्स मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है तो ऑप्शंस भी मैच नहीं करेंगे. यू डोंट थिंक अबाउट द ऑप्शंस आल्सो. यू ट्राई एन आंसर based on your subjective thought process. Think of it as a subjective question only. कुछ आंसर आया? Think of the elements which these configuration belong to, and maybe you will be in a better position to answer. This is chlorine, this is nitrogen, this is fluorine, and this is sodium. Right? So between nitrogen and fluorine, right, you know that fluorine का ionization energy will be more. 3 will be greater than 2. ये आपको पता है. Then between chlorine and sodium 1 and 4, you will know that chlorine will be greater than that of sodium. ठीक है. Between chlorine and fluorine, you will have an idea. They are part of the same group. ठीक है. So fluorine is greater than chlorine. So based on these, I think we can have a trend that 1 is greater than, or sorry, 2, 3. In fact, 3 is greater than, नहीं sorry, मैंने क्या लिख दिया एंड में. 3 है, sorry, 3 is greater than 1. Chlorine is greater than fluorine. Fluorine is greater than chlorine, sorry. Fluorine is greater than chlorine. तो अब इनके बेसिस पर 3 तो इन सबसे ज़्यादा ही लग रहा है. फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एंड सोडियम का इनमें कमी लग रहा है. ठीक है. अब मुझे, सॉरी, सोडियम इज नंबर 4. सोडियम का इन सबसे कम लग रहा है. मुझे 1 और 2 में, क्लोरीन और नाइट्रोजन में डिसाइड करना है. क्लोरीन एंड नाइट्रोजन में, ये थोड़ा टफ कॉल हो गया. हाउ डू आई डिसाइड बिटवीन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के नीचे जाएंगे तो फॉस्फोरस रहेगा. फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा. थोड़ा टफ कॉल हो जाएगा. बट बेनिफिट ऑफ डाउट मैं यही दूंगा नाइट्रोजन का, बिकॉज इट इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट.
I would want to say that nitrogen का ionization energy should be greater than that of third period element, which is chlorine. ठीक है, so 3214, right? ठीक है, all right. Then next class में recording 7 देख के आना, and I'm not giving you questions. ये मैं आपको next class में ही questions practice कराऊंगा, थोड़े बहुत numerical questions भी कराऊंगा, as well as some recap questions also. ठीक है, all right. Till then, take care, guys. कुछ doubt है, कुछ पूछना है आपको? हाँ यश बोलो. Second application of ionization energy. So this is something which is let me take or open the booklet only. I will just pick the statements from there itself. That when you talk about this application of ionization energy, ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, हाँ, this is what you are talking about, that determination of the oxidation state, ठीक है, और valency of an element. ठीक है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा बेसिकली हेल्प करता है. तो इसमें व्हाट द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन इज दैट, मान लो दो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन पोटेंशियल देख रहे हैं एलिमेंट के, और उनके बीच का गैप 16 eV से ज्यादा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए एक बड़ा जंप आ गया है. तो व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इट is this in this manner is that the second electron is not something which is easy to lose. तो एलिमेंट को सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लोअर वैलेंसी होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अभी आप देखना, अगर कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो गैप है वो 11 eV से कम है, 11 eV आवर्स से कम है, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जा रहा है. ठीक है, इतना उसमें बड़ा जंप नहीं लग रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का. इट इज रिलेटिवली इजी टू रिमूव इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज नेक्स्ट लेस देन 11 eV. तो इस केस में मान लो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, ठीक है, 7.4 eV लगा, सॉरी नहीं 7.4 नहीं है ये, एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज्यादा बड़ा गैप नहीं आया, जस्ट 7.4 eV का ही आया. ठीक है, which is less than 11 eV. So what we see is that magnesium will then have a tendency to actually lose the second electron also. It will tend to show the higher oxidation state, ठीक है, which is Mg2+. ठीक है, in case what we see in general is जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आप जब ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयनाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो उनका गैप जो रहेगा वो 16 और 11 के बीच में रहेगा. ठीक है, जनरली. तो उसमें व्हाट वी सी इज दैट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दे टेंड टू शो देन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. उसमें लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिख जाता है, कई बार हायर वाला भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाता है. ठीक है, समझ में आया? All right, then let's close today's lecture. कुछ और डाउट पूछना है आप लोगों को? All right, thank you guys. We'll now meet again on Saturday.